Morning. How is everyone? Today, as promised, I'm going to teach you how to do a push-up. Before we start, remember, tell yourself that push-up is a is an advanced level exercise. So the main thing that you need to remember about push-up is don't rush it. Don't rush it. So if you give it the respect, give that exercise the respect it deserves, then you will surely master it. So let's start. Today the warm-up is little different. So observe one repetition and then continue with the next repetition. We will do it sequentially. And yeah, I have new clothes. Quite loose, courtesy my sister, but workable I believe. Okay, let's start. First exercise is called inchworm. So start straight, standing straight. From that position, I'm going to push my hips back and try to touch my toes. I'm going to walk my hands forward till I come to high plank position. You can also go to dog position, whichever is more comfortable for you. From this position, you are going to, if you are in a dog position, walk yourself forward without losing the core control. Walk back, come all the way back and stand up. We are going to do 5 more repetitions of this. So I am doing inchworm. You can do a quadruped or dog walk, whichever is comfortable. Last couple of repetitions I will show for people who are doing quadruped or dog walk. Come here, fix your spine, walk yourself forward, walk yourself back and stand up. Last one. Excellent. Get into dog position. Next exercise is dirty dog. 8 repetitions on each side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wonderful. From this position, let's open up our chest and get ready for the workout. So I'm going to do threading the needle. Just using this as warm up. So we are only going to do 5 on each side. Try to open your chest as much as possible with every repetition. Other side. Wonderful. Neck rotations. Reverse. Starting with the push-up, I will teach you the push-up first, then I will show you the variations. We will do 5 counts of each right now, and together we will do a set of 8 repetitions back to back. So first thing first, what push-up is nothing but पुशअप क्या है कि आपका जो प्लैंक है, आप प्लैंक पोजीशन में आओ और आपका प्लैंक ऐसे के ऐसे नीचे जाना चाहिए फ्लोर तक और वैसे के वैसे ऊपर आना चाहिए. तो ऑब्वियसली अगर आपको अच्छा पुशअप करना है तो उसके पहले आपका प्लैंक अच्छा होना बहुत जरूरी है. ठीक है. आई विल शो यू 1 repetition and then we will break it down further. So get into high plank position. Body weight forward, shoulder blades in back pocket, chin tucked in, glutes and abs engaged. Take entire plank towards the ground. Turn your elbows in and push yourself up. When you are going down, you are going to breathe in, breathe out. Now the important thing to remember कि you are not allowed. मतलब आप जब पुशअप कर रहे हैं तो आपका प्लैंक ब्रेक होना ही नहीं चाहिए. तो उसका मीनिंग ये है कि अभी सारे जो वेरिएशंस दिखा रही हूँ वो गलत
तरीके से जो लोग पुशअप करते हैं उसके है, तो इनको सिर्फ देखना है और कभी भी नहीं करना है, ठीक है? So the first mistake that people do in push-up is do you see? I'm only taking my head in the ground and coming up. That is not a push-up. ये नहीं करना है, ये गलत ही नहीं है, ये बहुत हार्मफुल है आपके नेक के लिए और आपके स्पाइन के लिए. सेकेंड थिंग दैट पीपल डू रॉन्ग इज यहाँ पे आके do you see what I have done? I have dropped my hips down. So I'm basically bending my lower back and I'm just trying to fool myself that I'm doing a push-up. Again, क्या हुआ? Plank break हुआ, तो ये भी push-up गलत push-up कहलाएगा. फिर लोग साथ में दोनों चीजें करते हैं, जो I think मेरे लिए दिखाना भी मुश्किल हो जाएगा. Now coming to elbow position. ठीक है, तो प्लैंक जब ग्राउंड में लेके जाना है तो एल्बोज आपके बॉडी के जितने क्लोज हो सके उतने क्लोज रखने. उसका मतलब ये हुआ कि ओनली थिंग आई एम कीपिंग इन माइंड इज कि मेरे को एल्बोज अपने बॉडी के पास रखने. ठीक है, तो क्यों रखने हैं? इसका इंपॉर्टेंट रीजन है कि एल्बो बाहर, तो बेसिकली इंटरनल रोटेशन एंड एब्डक्शन. टेक्निकल डिटेल में मत जाइए, लेकिन ये पोजीशन आप देखिए मेरे आर्म का, ये पोजीशन आप हमेशा याद रखिए. ये पोजीशन आपके शोल्डर जॉइंट के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल रहता है. शोल्डर इम्पिंजमेंट इंजरी हो बोलते हैं उसको. उसका मीनिंग ये होता है कि आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो अगर आप, और ये बॉल एंड सॉकेट के बीच में लॉट ऑफ नर्व्स एंड लॉट ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज आर पासिंग, उसको आपको ऐसे एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस नहीं करना है. ठीक है, तो इसलिए हमेशा एल्बोज टुवर्ड्स आवर बॉडी. तो थर्ड वेरिएशन ऑफ रॉन्ग पुशअप इज दिस. ठीक है, तो तीन चीजें गलत तो बता दी मैंने कि नेक ड्रॉप करना, लोअर बॉडी ड्रॉप, आपकी बैक बेंड करना, या फिर एल्बोज को फ्लेयर करना. ये तीनों या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन गलत पुशअप ही कहलाएगा. सो नाउ लेट्स डू 4 राइट पुशअप्स. इफ entire push-up is difficult, that is absolutely fine. If you are telling me that you cannot do push-up, I actually appreciate your honesty. क्योंकि 100 में से सच में जो 100 लोग पुशअप कर रहे होते हैं उसमें से लिटरली 2 या 3 ही लोग सही पुशअप कर रहे होते हैं. तो अगर आप ऑनेस्टली बोल रहे हैं कि मेरा पुशअप मे बी इज नॉट वेरी गुड, तो आप यही है कि आप बहुत ऑनेस्ट है. सो आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी. इफ नॉट, इफ वो वाला पुशअप डिफिकल्ट है तो नील डाउन, पुट योर नीज ऑन द ग्राउंड, ऑलवेज पैड योर नीज विद द मैट. फ्रॉम दिस पोजिशन लेट्स गो टू डॉग पोजिशन. वॉक योर हैंड्स फॉरवर्ड एंड ओपन योर हिप्स. ठीक है, you can again hold your spine erect here and then go and come up. इसको कहते हैं knee push-ups. Better to do knee push-up than doing a wrong push-up. ठीक है, तो let's do 4 push-ups, then we will move to the variations. Fix a high plank. Go full depth. Push yourself up. Full depth, push yourself up. Full depth, push yourself up. तो आइडियली यू शुड, जो आपका फिस्ट है अगर आपने ग्राउंड पे रखा तो व्हेन यू आर कमिंग डाउन इन पुशअप इट शुड टच दिस फिस्ट. तो इतना डीप आपका पुशअप होना चाहिए. फॉर विमेन थोड़ा कम डेप्थ या गोइंग ऑन नी इज एक्चुअली कंसिडर्ड एवरेज या नॉर्मल, क्योंकि जो विमेन के लिए टेस्ट भी होते हैं पुशअप के, वो हमेशा नी पुशअप के होते हैं, बिकॉज विमेन naturally have lesser upper body strength and more weight in their upper body. ठीक है, let's do 2 more.
fix your plank, tuck your chin, shoulder blades in back pocket, abs and glutes tight. Let's go down and push yourself up. Breathe out and push. Nice. Now the next two variations that I want you to add, and I will tell you why. कि ये दो variations push-up के क्यों इतने important है. तो फर्स्ट आपने कई लोगों ने किया होगा डायमंड पुशअप. तो क्यों करते हैं हम डायमंड पुशअप? तो मेनली पुशअप में आपका चेस्ट, पेक्स जिसको बोलते हैं, और ट्राइसेप, बाइसेप के पीछे जो होता है ट्राइसेप, ये दो मसल्स पे पुशअप काम करता है. तो अगर आपको चेस्ट का कंट्रीब्यूशन कम करना है पुशअप में और ट्राइसेप पे ज्यादा लोड डालना है, तो देन यू कम टू डायमंड पोजीशन. अब ट्राइसेप पे इतना जोर क्यों दे रही हूं मैं? क्योंकि बाइसेप्स को बिल्ड करना या बाइसेप्स टोन करना बहुत आसान है, क्योंकि थ्रू आउट द डे भी हम बाइसेप्स का काम क्या है, फ्लेक्स करना. वो वैसे भी थ्रू आउट द डे यूज होता है, लेकिन आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें ट्राइसेप का जो काम है, ये वाला एक्सटेंशन का, वो यूज नहीं होता है. तो ट्राइसेप ऑलमोस्ट सारे लोगों के ही ट्राइसेप्स बहुत वीक होते हैं, और ट्राइसेप्स एक बहुत बड़ा मसल है. तो अगर आप उस पे काम करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा, प्लस आपके आर्म का शेप सिर्फ बाइसेप ने डिसाइड करता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग मसल. तो इफ यू वांट गुड आर्म्स तो ट्राइसेप का टोन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर लेडीज ऑल्सो दे ऑलवेज हैव कंप्लेन कि यहाँ पे देयर इज लॉट ऑफ सैगीनेस, मतलब बहुत लूज है नीचे वाला आर्म का पार्ट, जिससे बैक विंग्स आर्म्स बोलते हैं. तो अगर उससे आपको लग रहा है कि इट्स नॉट लुकिंग वेरी नाइस एंड यू वांट बेटर लाइक मोर टोन्ड आर्म्स, तो बाइसेप्स सिर्फ नहीं करने, ट्राइसेप पे बहुत इंपॉर्टेंस है. ट्राइसेप को टोन करना वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो गेट इनटू kneeling position. Same. First come into dog position. Fix your spine. Walk forward. Now I am going to join my arms together in diamond position. I am going to open my hips, keep my spine straight, go down and push. Breathe in and out. Breathe in and out. Breathe in and out. ठीक है. So this is about diamond push-up. If you are feeling very confident, get into full push-up and then do the diamond. But I would suggest don't be overconfident. पहले आप आपका नॉर्मल पुशअप का फॉर्म फिक्स कीजिए, उसके बाद वेरिएशन में जाइए. तो तब तक के लिए नी वेरिएशन इज द बेस्ट. सेकेंड वेरिएशन इज कॉल्ड स्टैगर्ड पुशअप. इसका इंपॉर्टेंस ये है कि मैंने हमेशा बोला, जब हम दोनों हाथ या दोनों पैर से काम करते हैं तो जो आपका डोमिनेंट हाथ या पैर है वो ही सबसे ज्यादा वेट उठाता है, और जो वीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ राइटी पर्सन, तो मेरा जो लेफ्ट साइड है दैट विल बी वीकर, और वो कभी समझ में ही नहीं आएगा, तो मेरा राइट साइड ही काम करता रहेगा और लेफ्ट साइड विल स्टिल रिमेन वेरी वेरी वीक. और दोनों के बीच में, जो मैं बोलती हूँ कि दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए. वाओ, मैं हिंदी. तो दोनों को एकदम साथ में चलना चाहिए, आपके राइट और लेफ्ट साइड को. जब वो नहीं होता है तो लॉट ऑफ imbalances and injuries happen. तो इसलिए staggered push-up is push-up position. अगर ये है आपका, तो I'm going to take one hand up, one hand down. ठीक है. I'm going to do one push-up in this position, then I'm going to switch. Now my left hand will be up, right hand will be back. Let's do it on the ground. Get into kneeling position. Fix your spine first. Walk your hands forward. Open your hips. Let's go to the staggered variation. Forward, back, push, come up. Switch sides, push, come up. Again, push, come up. Try to keep your elbows in, push, come up. Wonderful. Are you ready for doing this back to back for 8 repetitions? Let's do it. So first normal push-up, then diamond push-up, then staggered push-up. If you are feeling confident, get into full plank and start, otherwise get into kneeling position. Not going to count because I need to breathe in and breathe out as well. Count till 8. Every time I'm switching to next exercise, I will be telling you.
Nice. Diamond. Excellent. Reset your plank position. If you feel your form is breaking, fix your spine. Last one in the combination, staggered push-up. We are going to do 4 on each side. Engage your core, squeeze your glutes. One extra. ब्यूटिफुल. अब ऐसे कुछ लोग होंगे जो बोल रहे होंगे कि कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब डॉग पोजीशन होल्ड करना या प्लैंक पोजीशन होल्ड करना ही डिफिकल्ट है. तो डोंट वरी, मैंने हमेशा पहले भी आपको यही बोला था कि पुशअप या फिर पुलअप ये बहुत ही एडवांस लेवल एक्सरसाइज है, उसको आप हमेशा गोल रख सकते हैं. तो आपको वहां तक पहुंचना है. तो आप स्टार्ट कहाँ करेंगे? तो आप स्टार्ट करेंगे आपके प्लैंक, डॉग, जहाँ पे आपको पहले आपका स्पाइन कंट्रोल करना आना चाहिए. तो वंस यू फर्स्ट बिकम एन एक्सपर्ट इन होल्डिंग योर स्पाइन टुगेदर, द नेक्स्ट थिंग जो कल का चैलेंज भी था उसे कहते हैं निगेटिव पुशअप और द गोइंग टू द ग्राउंड फेज ऑफ पुशअप, वो मास्टर करना है. ठीक है. तो अगर प्लैंक आ रहा है ठीक से होल्ड करना या डॉग पोजीशन आ रहा है तो जस्ट प्रैक्टिस एवरी डे फॉर लाइक 8 to 10 repetitions just going into the ground. ठीक है. I will show you right now from dog position. कल मैंने ऑलरेडी प्लैंक से दिखाया था. ठीक है. So just practice going into the ground with lot of control. तो क्या होगा अगर आपके पास enough strength नहीं है तो you will fall down from this place. Absolutely fine. As long as you are not somebody who has some injuries, somebody who is very old, यहाँ से यहाँ तक गिरने से, वो भी मैट पे, कुछ भी नहीं होता है. So just practice this every day. You will see in 10 to 11 days this negative push-up will be very easy. Then you can attempt to come up. ठीक है. Let's do one negative push-up once again, this time from high plank position. ठीक है. तो ऐसे अगर आप हर रोज 10 बार 8 बार जो भी जितने भी बार आपको आ रहा है, एक बार आ रहा है, that is also fine. Try to build towards 10 repetitions first, then try to push. मेन चीज पुशअप में यही होती है कि डोंट रश इट, क्योंकि आप रश करोगे तो आपको लगेगा आपका पुशअप बहुत सही है. ठीक है. और आप बहुत अमेजिंग पुशअप कर रहे हैं और देन यू विल गो फॉर इवन मोर एडवांस वेरिएशन. तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. पहले देखिए और पहले ये गोल रखिए कि मुझे एक ही करना है लेकिन परफेक्ट पुशअप करना है. ठीक है. जैसे कि आप अभी भी देख सकते हैं कि मेरा लेफ्ट हैंड अभी भी वीक है, तो आई नीड टू टेल माई सेल्फ, आई कैन नॉट लाई टू माई सेल्फ कि हाँ मेरा तो सब कुछ परफेक्ट है. ये जो एटीट्यूड है ये आपका प्रोग्रेस खत्म कर देता है. तो हमेशा आई ऑलवेज टेल ऑल माई क्लाइंट्स कि लीव योर ईगो आउटसाइड द जिम, वापस जाते टाइम लेके जाना. ठीक है. तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ईगो बीच में नहीं लाना है. ठीक है. नाउ लेट्स वार्म कूल डाउन. वी विल टॉक अबाउट कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस. ठीक है. तो अगर हमने पुशअप किया है, चेस्ट और ट्राइसेप पे आज काम किया है, तो उसको स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली चेस्ट को
बहुत सारे हम जिम गोअर्स क्या करते हैं, सब बंदों के लिए ये टिप है मेरा कि आप जाते हो बेंच प्रेस करते हो, ठीक है, बेंच प्रेस करते हो, आपका वो फेवरेट एक्सरसाइज है, बट यू नेवर एवर स्ट्रेच योर चेस्ट, तो उसकी वजह से द मोर यू वर्क आउट मोर राउंडेड योर शोल्डर्स गेट, ये पोजीशन में आप आते हो, तो सारे बॉडी बिल्डर्स ऐसे चलते हैं और ये बहुत ही हार्मफुल पोजीशन है आपके लिए, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो हमेशा टेस्ट करना है अपना पोस्चर अच्छा है या नहीं। तो randomly when you are talking to someone walking, suddenly just stop at whatever you are doing and point your thumb, ठीक है। अगर आपके थंब स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपके शोल्डर और आपका पोस्चर सही है, और अगर आप चल रहे whatever your daily activity, you stop and point your thumb, अगर इनवर्ड पॉइंट कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके शोल्डर्स राउंड होना स्टार्ट हुआ है। एंड प्लीज मेक श्योर यू डू द एक्सरसाइज आई शोड यू, wall slides, IYTO, and make sure you are stretching the pecs. तो क्या ये ओपन होता है? पेक स्ट्रेच करने के लिए अब लेट मी चेंज द एंगल। सबसे आसान तरीका अगर आपको कुछ करना है तो आप डोरवे स्ट्रेच कर सकते हैं। So stand in a doorway, get into this Y position, just come forward and stretch. Hold for 10 seconds. Nice. The other stretch also you can do, which is better, but अभी सिखाना थोड़ा complicated हो जाएगा. Let's stretch our triceps. ट्राइसेप का स्टैंडर्ड स्ट्रेच होता है ये, बट इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखिए कि व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग ट्राइसेप, इफ यू कैन होल्ड योर शोल्डर ब्लेड डाउन, इट विल गिव यू अ बेटर स्ट्रेच। और अगर ट्राइसेप के स्ट्रेच के पोजीशन में भी आप आ नहीं पा रहे हो तो स्टॉप डूइंग ट्राइसेप एक्सरसाइजेस एंड फर्स्ट मेक श्योर दैट योर ट्राइसेप इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। डोंट कंटिन्यू एंड स्टिफन इट इवन मोर। Hold for 10 seconds. Other side. Forward lunge. Other side. Look in pocket, shoulder blades in back pocket, look in the pocket and push your head down. You can also keep this hand back and lock your shoulder. Other side. Child pose. Touch your forehead on the ground. Relax your body. Relax your breath. Wonderful.